Hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Mishra guys, education for better tomorrow, and this series of the lockdown is special series for class 11 CBSE 2021 students. Today I am going to discuss all the question of exercise 1.1 NCRT of the sets guys, and this question is based on the two concepts which I have already discussed in the previous session guys, and the both concept related to the set builder form and another is a roster form or the tabular form. Okay, and this is presented by me, Ashish sir, guys. And if you are new on this channel, so please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for the upcoming session. Okay, and share it to everyone for the support, guys. Okay, right. So this is the most important thing. Okay, so guys, I am going to start this session. So the first question is which of the following are the seats and justify your answer and the collection of all the months of a year beginning with the letter J. So this is the very simple question guys. I hope you can solve this question very easily, right? Sorry guys. So solve it the very fastly guys. Okay, all right. So guys, this is the very interesting guys. So we can say that we know that we have to check this statement it belongs to the set or not. So this is the very simple justify your answer. You have to justify your answer also guys. So guys, the question is saying the collection of all the months of the year beginning with letter J. This is the very simple guys. अब यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो ईयर में जो मंथ आते हैं जिनका लेटर जो है वो जे से स्टार्ट होता है. सो यू कैन से दैट जे से स्टार्ट होना मतलब पहला जनवरी, राइट. ओके, उसके बाद जनवरी के बाद फिर आपका क्या आएगा बताओ, जून, जुलाई, राइट. तो यहाँ पे हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे 12 मंथ में जो है यहाँ पे वैसे ही मंथ का नाम लिखना है जिसका लेटर जो फर्स्ट लेटर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, जे से स्टार्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे बिकॉज वन कैन से डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ मंथ बिलोंग टू दिस कंडीशन कलेक्शन. तो यहाँ पे वी कैन simply identify this collection because this is a well defined collection. So we can say that what we can say that guys, this is a set. Okay, so what you can write, मैं आपको एक बार स्टेटमेंट लिख के बता देता हूँ ताकि आपको बार बार मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक बार लिख कर बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे बोलेंगे what we can write here guys. तो यहाँ पे एक तरीके से सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं. सो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ये आप लिख सकते हो द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर beginning with the letter J, with the letter J, with the letter J is well defined collection of the object, well defined collection of object, राइट. तो ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. सो दैट्स वाई बिकॉज इसके बाद क्या लिख सकते हैं, because one can definitely
one can definitely definitely identify identify 1 minute guys. Definitely identify a month belong to this collection. A month belongs to this collection. So this is the, ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हो, राइट. सो एवरीथिंग क्लियर. तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जैसे वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं. दिस इज द वेरी सिंपल गाइस. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कलेक्शन ऑफ द टैलेंटेड राइटर. तो इट इज नॉट अ सेट. तो यहाँ पे बोलेंगे नो नो the collection of 10 most talented writer of India, most talented writer of India is not a set because it is not a well defined collection of set. क्योंकि ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट का नहीं है. रीजन क्यों? क्योंकि आप अगर बताओ कि यहाँ पे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो है वो इंडिया का, आप कैसे बता सकते हो? देयर इज नो क्राइटेरिया इज गिवन हियर. यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है. आपके अकॉर्डिंग मेरे को कोई राइटर अच्छा लग सकता है, आपके अकॉर्डिंग ये मैन टू मैन वेरी कर सकता है. यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब कि पूरा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकते, ये सेट नहीं है, राइट. तो ये पर्सन टू पर्सन जो है इसका वैल्यू वेरी कर सकता है. तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इट इज नॉट अ सेट बिकॉज नो वन कैन टेल and no one can tell about the 10 most talented writer of the India because it varies person to person of the India guys, right? Okay, now the collection of boys in your class. So guys, this collection is set. Okay, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बॉयज जो है वो आइडेंटिफाई करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में सिंपली क्या लिखोगे? यस, इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यस, इट इज अ सेट. इट इज अ सेट. ओके, because it is well defined collection of objects, राइट. तो ये आपका आ गया, ठीक है. अब चलो नेक्स्ट में कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 10. सो यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ सेट. तो यहाँ पे यस आप इसका स्टेटमेंट लिख लेना बिकॉज we can identify the number all natural number less than 100 because the natural number start from the 1. So we can write here 1 2 3 4 5 6 जो है वो आपका 100 से नीचे तक हम लोग लिख सकते हैं. तो yes, it is a set.
दिस इज अ सिंपल, आप बाकी का स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेना क्योंकि रीजन भी बताना है। अब यहाँ पे ऑल द कलेक्शन ऑफ द नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो ये भी आपका सेट है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि जितने भी कलेक्शन है नॉवेल्स के तो वो आपको बताना है, क्योंकि एक स्पेसिफाइड एक पार्टिकुलर यहाँ पे राइटर का नाम भी दे दिया गया है। अगर यहाँ पे बोला जाता कि राइटर 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया या फिर वर्ल्ड, तो वहां पे आप इसको जो है सेट कंसीडर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे बोल सकते हो यस इट इज अ सेट। why why we can say that it is a set, guys? This is the very simple thing. So why we can say that? Because the collection of novel written by the uh, Munshi Premchand, guys. So it is a well-defined collection of the object, and one can definitely identify a book belong to the this collection. So you can say that yes, it is a set, guys. Okay, right. चलो, अब इसके बाद collection of all even integer. Yes, it is also the set, क्योंकि even integer we can write here the 2 4 6 8, right? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, right? The collection of question of in this chapter, ठीक है। यस, ये भी आपका सेट है क्योंकि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो यस इट इज सेट, इट इज सेट। इसके बाद कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपको नहीं पता है तो ये आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट डेंजर एनिमल जो है वो आपका वर्ल्ड का आप नहीं बता सकते हो। सब एनिमल जो होते हैं, कुछ एनिमल डेंजरस भी हो सकते हैं, कुछ एनिमल जो है कुछ कुछ अलग अलग उनका क्राइटेरिया होता है ना। जैसे शेर का अलग क्वालिटी है, वो अलग तरीके से डेंजरस है, सांप भी एक तरीके से डेंजरस है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा एनिमल जो है वहाँ पे डेंजरस है, वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस? तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट सेट, तो यहाँ पे ये नॉट हो गया, ये यस होगा, ये भी नॉट से ये भी आपका आ जाएगा यस इट इज सेट, ये भी आपका सेट दिया हुआ है यस इट इज सेट, राइट, ओके। अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन किसके लिए लगाते हैं? एप्सिलॉन ये जो है ग्रीक वर्ड का यूज हम लोग करते हैं बिलोंग्स टू के लिए, ठीक है, राइट, जो कि मैंने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को अगर ये दिक्कत आ रही है समझने में तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट आप जाकर देखो ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, राइट। तो ये आपका बिलोंग्स हो गया, ये आपका बिलोंग्स टू हो गया, ठीक है, राइट। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट उसमें शामिल है, तो उस कंडीशन में ये साइन लगाएंगे। अगर शामिल नहीं है, नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, ये एप्सिलॉन नोट को ऐसे करके एप्सिलॉन को ऐसे काट देंगे तो ये डज नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 इसमें शामिल है तो यहाँ पे ये लगाएंगे एप्सिलॉन, 8 शामिल है नहीं है तो जो नहीं है यहाँ पे ऐसे नॉट कर देंगे, 0 शामिल है नहीं है तो इसको कर दो नॉट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शामिल है 4 तो बिल्कुल करेंगे एप्सिलॉन करेंगे, बिलोंग्स टू, यहाँ भी बिलोंग्स टू आएगा, 10 जो है वो शामिल नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर मैं ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन में। फर्स्ट का जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हम लोग एप्सिलॉन लिखेंगे, बिलोंग्स टू है। सेकंड का जो है वो एप्सिलॉन नोट होगा तो इसको हम लोग ऐसे काट देंगे। थर्ड में कितना करेंगे, थर्ड में भी एप्सिलॉन नोट क्योंकि 0 है तो 0 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद फोर्थ में कितना जाएगा, फोर्थ में जो है वो आपका एप्सिलॉन होगा। फिफ्थ में क्या होगा, आपका एप्सिलॉन होगा। एंड 6 में क्या होगा, 6 में जो होगा एप्सिलॉन नोट होगा क्योंकि वहाँ पे 10 के बारे में पूछा है तो एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे आप 5 एप्सिलॉन ए, 8 एप्सिलॉन नोट ए, फिर उसके बाद 0 एप्सिलॉन नोट ए, फिर उसके बाद 4 एप्सिलॉन ए, 2 एप्सिलॉन ए एंड एट लास्ट 10 एप्सिलॉन ए। यही था आपका आंसर। सो इट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, 2 फॉर्म से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को यहाँ पे हम लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म 2 टाइप का फॉर्म होता है। जैसे ये फॉर्म है तो इस टाइप में स्टेटमेंट में अगर लिखा हुआ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, सेट बिल्डर फॉर्म।
अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम लोग बताएंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि उसके सारे एलिमेंट जो होते हैं हमारे आँख के सामने होते हैं, उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, सारे एलिमेंट सेपरेट होते हैं। जैसे ABC मान लो कि किसी भी मतलब वहाँ पे सेट है, तो यहाँ पे सारा एलिमेंट इसका लिखा हुआ है और वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं होता है और उसके जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं कॉमा से। तो इसी को क्या करना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहला सेट A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 बिलोंग, एक्स का वैल्यू जो होगा वो आपका -3 के बराबर या फिर उससे बड़ा लेकिन 7 से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए जो एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है। ठीक है, और एक्स एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब आप ये समझ लेना कि वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो गाइस, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बहुत आसानी से बना कर ले जाओगे। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि x एक इंटीजर है, x का वैल्यू -3 के बराबर या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। तो -3 के बराबर और उससे बड़ा अगर मैं बात करूँ तो -3 के बाद -2, -1, 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखो 6 तक ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो 7 के बराबर नहीं है, 7 से छोटा होना चाहिए। तो x का वैल्यू आपका यही होगा, तो सेट आपका ये आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर जो है ये आ गया आपका। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड का आंसर के बारे में बात करेंगे तो सेकंड में आ गया आपका बी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि x such that x is a natural number, natural number that is the counting number, counting start from the 1 guys, this is the very simple, and it's and natural number is less than 6 एंड x तो नेचुरल नंबर है लेकिन उसका वैल्यू 6 से कम होना चाहिए, 6 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 वी कैन नोट राइट हियर व्हाट गाइस, क्योंकि क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है कि एक ये जो x जो है नेचुरल नंबर है लेकिन x का वैल्यू 6 से कम होना चाहिए। चलो, तो सेकंड का आंसर भी आ गया। इसी तरीके से थर्ड में अगर हम लोग बात करें तो थर्ड में ये बोला कि x है एंड x इज a 2 digit नेचुरल नंबर, ओके, एंड सच दैट सम ऑफ द इट्स डिजिट इज 8। अब यहाँ पे देखो कि x जो है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, इस प्रकार की उसका सम जो आना चाहिए उसका 8 आना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है तो सबसे पहले देखो हमारे पास 2 डिजिट का कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 आ सकता है। तो पहला हम लोग लेंगे तो 17, दूसरा लेंगे 26, तीसरा लेंगे 35, फिर नेक्स्ट लेंगे 44, 55, 62, फिर उसके बाद 71 एंड 80। तो यही सारा नंबर जो है इस सेट में बिलोंग करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्योंकि इसका सम जो आना चाहिए डिजिट सम वो 8 ही आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो सी में अब हम लोग लिखते हैं, सी को इसी तरीके से सारे एलिमेंट को लिख दो। 2 डिजिट का है तो 1 डिजिट का तो ले नहीं सकते हैं, तो 17, दूसरा में कितना आ जाएगा 26, 35, 44, 53, सॉरी यहाँ पे 55 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 53 होगा। देन आफ्टर वी कैन राइट 62, 71 एंड 80। ये जो हो गया ये आपका आंसर आ गया किसका, थर्ड का, सी का। ठीक है, राइट, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, बिल्कुल मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, ओके गाइस, तो ये 3 चीज हम लोगों ने देख लिया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन से, ओके। अब यहाँ पे देख लो कि ये 4th नंबर में क्या होगा। 4th नंबर जो है यहाँ पे क्या बोला, तो 3rd नंबर तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद 4th नंबर में देख लो, सॉल्यूशन में चलते हैं। 4th नंबर में क्वेश्चन है कि x that x is a prime number, prime number, what is the prime number, prime number which has only 2 different factors, जिसका सिर्फ और सिर्फ केवल 2 अलग अलग फैक्टर्स हों
मतलब दो अलग अलग नंबर से वो विभाजित हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइम नंबर। अब सबसे पहले बोला गया 60। 60 तो पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, उसके बाद और कोई संख्या ऐसा नहीं है जिससे ये कटेगा प्राइम नंबर, 2 3 5 के अलावा। तो यहाँ पे आप अगर डी का आंसर लिखोगे तो यहाँ पे 2 3 एंड 5, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी नंबर से कटता है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होता है। क्वेश्चन में ये बोला कि x इज प्राइम नंबर एंड विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60, जो कि 60 को डिवाइड भी करना चाहिए और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। प्राइम नंबर वो ऐसा संख्या जो सिर्फ और सिर्फ केवल 2 से कटे, दो अलग अलग संख्याओं से विभाजित कर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे डी का आंसर कितना आ जाएगा, 2 3 एंड 5, सो 5, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब इसके बाद 5 में बात करेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन में। तो डी के बाद आ गया ई। अब यहाँ पे है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला है, उसके सारे लेटर को हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है TRIGNOMETRY, राइट। अब यहाँ पे आपको एक चीज में आया कि यहाँ पे सर जी के बाद एन के बाद भी होता, क्यों नहीं लिखे। दो चीज का ध्यान रखना, कभी भी अगर आप लेटर या फिर वर्ड के लेटर को अगर आप लिख रहे हैं सेट में, तो पहला कि या फिर कोई भी चीज को अगर आप सेट में लिख रहे हो, उसका एलिमेंट रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर आप 5 को भी, अगर 5 को 10 बार लिख दो, जैसे मैंने एक सेट लिया ए में, अगर उसमें लिख दिया ए ए ए, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये एक ए के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारा चीज आपको बताया इंट्रो पार्ट में, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर उसको सारा चीज देखिए। दूसरा चीज कि यहाँ पे एक तो ये चीज हो गया, लेकिन दूसरा चीज एक और चीज होता है कि पहला तो अगर रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट को बार बार, ठीक है, कोई भी एलिमेंट कितना भी बार आया हो किसी वर्ड में, तो उसको एक ही बार लिखते हैं। दूसरा, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जैसे कि आप टी आर के जगह पे आर टी भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ RTGI, राइट, GIONNTEY, राइट, तो बोथ आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पे दोनों में सेम इसलिए है क्योंकि देखो कि इसका और इसका एलिमेंट दोनों आपस में क्या होना चाहिए, सारा एलिमेंट बस मिलना चाहिए, आगे पीछे इट डजेंट मैटर, उसका जो है ऑर्डर से कोई भी मैटर नहीं होता है। सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है क्या इसमें टी है, इसमें टी है, बिल्कुल है, आर है, जी है, जी है, आई है, ओ है, ओ है, एन है, एन है, एम है, टी है, टी है, ठीक है। और सॉरी गाइस, एक्चुअली 2 बार टी यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको 2 बार टी नहीं लिखना है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, राइट। एवरीथिंग क्लियर। चलो, तो ये आपका जो है पैटर्न चेंज करने से कोई मैटर नहीं होता है, आपको वहाँ पे क्या करना है, तो आप इसमें से इसको भी आंसर लिख सकते हो, इसको भी आंसर लिख सकते हो, राइट, लेकिन कोई भी लेटर छूटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना आपको, ठीक है। उसके बाद एफ में अगर हम लोग बात करें तो बेटर है, तो एफ में क्या है कि यहाँ पे बेटर है तो बी ई आपको लिखना है। अब पहला लिख देंगे बी, दूसरा में आ जाएगा ई, राइट, और फिर टी, और फिर आर, राइट। तो तीन बार, 2 बार ई था उसको एक बार लिख दिए, 2 बार टी था उसको भी एक बार लिख दिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का आंसर, 3rd नंबर का पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन में। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले में क्या था कि सेट बिल्डर में था, उसको हमको कन्वर्ट करना था किसमें, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग रोस्टर को सेट बिल्डर में, ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका है रोस्टर फॉर्म। अब ये सारे रोस्टर फॉर्म को हमको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे दिखाना है ताकि वहाँ पे जो है ये सेटिस्फाई हो जाए, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो, और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक के लिए जो है एक ही स्टेटमेंट जो हम लिख रहे हैं वही सही हो सकता है, आपका भी सही हो सकता है, बस वहाँ पे जो है वो पैटर्न सही आपको आना चाहिए। जैसे देखो
हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहला अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखूं कि इसको मैंने मान लिया कि सेट ए, ठीक है, ये आपका सेट ए है। सॉल्यूशन में अगर हम लोग चलते हैं, इसको मैंने मान लिया कि दिस इज अ सेट ए गाइस, राइट। अब यहाँ पे इस सेट ए को अगर मैं लिखूं कि ए सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स इसमें ए में बिलोंग कर रहा है। एक्स क्या है, एक्स इज व्हाट गाइस, what we can write here, we can write here x equal to, x is a multiple of 3, right, but less than 30, right। ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला तो ये हो गया, राइट, ओके। x is the multiple of the 3 and less than 30, फर्स्ट आपको पता चल गया किस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा आप इसी को भी लिख सकते हो, इसका आंसर ये भी हो सकता है x सच दैट x इज इक्वल टू व्हाट गाइस 3n, राइट, या फिर 3y, कुछ भी लिख दो, x इक्वल टू 3y वेयर y इज द नेचुरल नंबर एंड n इज द नेचुरल नंबर, ठीक है। x इक्वल टू 3n हो गया, एवरीथिंग क्लियर। एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n को मैंने लिख दिया कि n जो है वो कैपिटल N में बिलोंग करता है, और n का वैल्यू जो होना चाहिए वो आपका किससे होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। आप देखो कि यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट लिखा, दोनों से एक ही जो है वो बता रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि a जो है वो x में, x जो है वो a का मतलब एलिमेंट है, x जो है वो 3n के बराबर है, तो देखो 3 का मल्टीपल भी मैंने लिख दिया। n का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू 1 से क्या 5 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, राइट, 5 से छोटा, आप इसको छोड़ो, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट, सही था, 5 से छोटा होना चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 से छोटा होना चाहिए, ओके गाइस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 से छोटा। अब ये दोनों से आपको जो है यही फर्स्ट वाले इस सेट के बारे में पता चलेगा, आप वहाँ पे उसका वैल्यू चाहो तो निकाल भी सकते हो। अब देखो कि x इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है 3n, n इक्वल टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और जब 5 से छोटा तो 1 2 3 4 लेंगे, राइट, यही लेंगे। अब n की जगह पे 1 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा 6, जब 3 रखेंगे तो कितना आएगा 9, और जब 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो क्या आ गया, इंफॉर्मेशन आ गया, मल्टीपल ऑफ 3, तो वही टर्म है। तो यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो होता है सिर्फ वो आपका सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, जो उसको सेटिस्फाई करेगा इस, राइट, अगर वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो बिल्कुल आपका वो सही है, राइट, ओके। चलो, तो ये आपका फर्स्ट का आ गया। अब हम लोग सेकंड में चलते हैं। सेकंड में क्या है कि यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा गाइस, यहाँ पे 2 4 8 16 32, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि 2 के मल्टीपल में जा रहा है, मतलब 2 का जो है वो आपका पावर में ये कन्वर्ट होते जा रहा है, राइट, दिस इज द वेरी सिंपल गाइस, ओके। चलो, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जैसे ये सेकेंड सेट में जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सेकेंड सेट में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको पहले वहां पे जो सेट दिया हुआ है, अब इस सेट को बी मैंने मान लिया, तो बी सेट को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 4 8 16 और फिर यहाँ पे 32, तो अगर तुम देखो तो ये आपका 2 का पावर 1 है, ये कितना है 2 का पावर 2 है, ये कितना है 2 का पावर 3 है, ये कितना है 2 का पावर 5 है, और ये कितना है 2 का पावर 6 है। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे हम लोगों का क्या है कि ये पता चल रहा है कि 2 का पावर में आपका ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे b के बारे में यहाँ पे आपको यही स्टेटमेंट लिखना होगा, इतना बराबर कि x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n, और n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा कि n जो है x जो है n जो है वो आपका 1 से बड़ा होगा,
या फिर उसके बराबर होगा, लेकिन 5 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप दो इंटरवल ले सकते हो, जैसे मैंने 5 से छोटा लिखा, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि ये 4 के बराबर या फिर उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, तो 4 के बराबर 4 को भी इंक्लूड कर लिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर, लेकिन यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे भी अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और जब नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है इट मीन्स व्हाट गाइस कि वो आपका 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट वाला नहीं लिखते हो तो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको लास्ट वाला लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, चलो अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, सी अगर इसको मान लेते हैं तो पहला में क्या है 525, फिर उसके बाद है 125, फिर उसके बाद है 625। दिस इज द वेरी सिंपल गाइस। अब यहाँ पे 5 का पावर 1, यहाँ पे कितना है 5 का पावर 2, यहाँ पे है 5 का पावर 3, और यहाँ पे 625 का है 5 का पावर 4। ओके, एवरीथिंग क्लियर? सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, राइट। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 4। सिमिलरली आप उसी के टर्म में इसको लिख दो, जैसे अभी 2 का हुआ था उसी तरीके से यहाँ पे 5 का लिख देंगे। तो अब अगर हम लोग इसको 5 का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x, ये आंसर हमारा इसका ये हुआ, ये आपको लिखने की जरूरत, आप लिख देना बिल्कुल कि वी कैन ऑब्जर्व दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, राइट। सो फर्स्ट टर्म इज 2 to the power 1, तो उस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, राइट। तो इट कैन बी सीन दैट, तो आप ऐसे कर लेना। और फिर x सच दैट कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 to the power n, एंड n belongs to n, एंड कॉमा स्मॉल n का वैल्यू कितना होगा 1 से बड़ा या फिर उसके बराबर, और आपका 4 से जो होगा, ये यहाँ पे 4 है, 4 से छोटा या फिर उसके बराबर, ऐसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे 5 से छोटा लिख दो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जो आपको अच्छा लगे वो लिखो, लेकिन आपको 5 से छोटा लिखोगे तो 4 आ जाएगा, अगर आप 4 के बराबर या फिर उसको इंक्लूड करके लिखोगे तो भी आपका आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद देखो ये आपका 2 4 6 डॉट डॉट आगे बढ़ते जा रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, यह 4 नंबर क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में है 2 4 6, ये आपका आगे और डॉट डॉट बढ़ते जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 के मल्टीपल में बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग मल्टीपल ऑफ 2 बोल सकते हैं या फिर इवन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो x such that x is an even नेचुरल नंबर। ओके, तो ये आपका आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर लगा दिए तो आ गया, 5 में आ गया। अब इसके बाद 6 में चलेंगे। 6 में देखो कि आपका क्या है, यहाँ पे देखो, अब इसके बाद देख लो 6 में क्या करेंगे हम लोग। 6 में बहुत ही सिंपल है। 6 में क्या है कि आपका 1 है, फिर आपका जो है 4 है, राइट, फिर उसके बाद 9 है, फिर इसके बाद डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है, ये आपका 100 पे जा रहा है, राइट। एवरीथिंग क्लियर? यही है हमारे पास सेट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर इस पैटर्न को देखें, इट कैन बी सीन दैट, आप यहाँ पे लिख सकते हो इट कैन बी सीन दैट, it can be seen that what guys, so we can write here 1 square is equal to 1, another is a 2 square is equal to 4, another is a 3 square is equal to 9, and dot 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 10 square is equal to 100। ओके, ये आपका आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया कि इस सेट में ई में अगर मान लो कि इसको इस सेट को ई मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1 4 9 और डॉट डॉट 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एस एक्स सच डैट एक्स जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है वो आपका एन स्क्वायर के बराबर है, एन स्क्वायर के बराबर, और एन का वैल्यू जो है वो आपका एन स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है, और यहाँ पे एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n belongs to natural number, and आपका आ जाएगा
कि ये जो छोटा वाला n जो है वो आपका 1 से बड़ा या फिर उसके बराबर, लेकिन 10 से छोटा या फिर उसके बराबर है। ठीक है, अब इसमें रख दो, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो उस तरीके से सारा आपका ये आपका जनरल प्रॉपर्टीज आ गया, जिससे आपका ये पूरा का पूरा जो है सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अब इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि लिस्ट द ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सारा एलिमेंट जो है इसका सेट का आपको बताना है। तो यहाँ पे बोला गया है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसका आंसर लिखोगे बहुत ही कुछ करना ही नहीं है, ऑड नेचुरल नंबर है, a इक्वल टू क्या करना है आपको, यहाँ पे लिमिट नहीं दिया हुआ है तो 1 3 5 7 ये आपका बढ़ते जाएगा, ये आपका इन्फिनाइट जो है वो सेट है, इन्फिनाइट सेट है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि x इज एन इंटीजर एंड इट्स वैल्यू फ्रॉम -1/2, -1/2 से बड़ा होगा लेकिन 9/2 से छोटा होगा। अब यहाँ पे अगर इसका आंसर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिंपली इसका आंसर क्या लिख सकते हैं बताओ गाइस। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको लिख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से, क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे पहला तो इंटीजर आपका फ्रैक्शन में होता नहीं है, तो -12 के बाद अगर हम लोग लेंगे तो पहला आपका 0 आएगा, पहला 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा एंड फिर आपका 4 आएगा। और ये 9/2 भी नहीं लेंगे क्योंकि ये होता है 4.5 4.5 अगर आप इसका निकालोगे तो ये भी फ्रैक्शन में हो गया इससे, तो यहाँ पे हम लोग 1 to 4 तक का वैल्यू ले सकते हैं गाइस, राइट। एवरीथिंग क्लियर, चलो, राइट, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। तो ये आपका आ गया 0 1 2 3 4 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट है कि हमको कोई भी ऐसा वैल्यू लेना है नेक्स्ट में, अगर थर्ड का अगर हम लोग देखें सॉल्यूशन जो है वो अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन का देखें तो थर्ड नंबर बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी बन जाएगा। थर्ड नंबर में ये बोला कि x सच दैट x इज एन इंटीजर और उसका x स्क्वायर का वैल्यू जो होना चाहिए वो आपका क्या आना चाहिए, आपका जो है ये आपका 4 से छोटा या फिर उसके बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इंटीजर के बारे में बोला है, तो इंटीजर में हम लोग प्लस और माइनस दोनों में से किसी का वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे c इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, तो -1, तो -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा, 0 ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा -2 का वैल्यू ले सकते हैं, -2 लेंगे तो 4 के बराबर आएगा तो 4 तक ले सकते हैं, -1 लेंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं गाइस, एवरीथिंग क्लियर। तो ये सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, क्योंकि सबका स्क्वायर या तो 4 आएगा या तो फिर 4 से छोटा आएगा, इसके अलावा अगर और कोई वैल्यू लोगे इंटीजर का तो वो आपका 4 से ज्यादा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, उसमें आपको लोयल का लेटर को अरेंज करना है। एक्स जो है वो आपको किस चीज को डिनोट कर रहा है, लोयल के लेटर को, राइट। अब यहाँ पे देखो लोयल के लेटर को, तो इसको डी को अगर हम लोग बात करेंगे तो डी में कितना आ जाएगा, एल ओ वाई ए, क्योंकि 2 बार एल है तो यहाँ पे 2 बार नहीं लिखना है, क्योंकि सेट में एक ही बार जो है कोई भी अगर टर्म्स कोई भी ऑब्जेक्ट बार बार रिपीटिंग है उसके बाद भी हम लोग उसको एक ही कंसीडर करते हैं। ई में अगर फिफ्थ में अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ में कितना आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग द 31st डे। तो कौन कौन सा जो मंथ है जिसका जो है वो आपका ईयर में 31st डे नहीं होता है, राइट। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि यहाँ पे एफ में क्या होता है, तो पहला पहला सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी जो होता है उसका उसका जो होता है आपका यहाँ पे वैल्यू जो होता है फेब्रुअरी का, उसका 31 दिन नहीं होता है, वो 28 और 29 का होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल हो गया, देन आफ्टर वी कैन राइट हियर द जून, उसके बाद हम लोग इसको जून लिख सकते हैं। उसके बाद सितंबर हो गया, सितंबर के बाद अगर हम लोग बात करें तो नवंबर आपका हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। एंड लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या बोला कि के से प्रीसीडिंग जो भी आपके कांस्टेंट कॉन्सोनेंट है वो आपको लिखना है प्रीसीड्स, ठीक है। तो के से पहले, तो के से पहले अगर हम लोग बात करें तो के से पहले अगर इस एफ के बारे में बात करें तो एफ के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से गाइस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं? तो K से पहले आपका जो कॉन्सोनेंट होता है वो B होगा, दूसरा C होगा, फिर D होगा, F होगा, G होगा और H होगा, फिर उसके बाद J आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है। मैच इज सेट लेफ्ट इन द रजिस्टर फॉर्म विद द सेट सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला क्वेश्चन है कि ऑल पहला 1 2 3 6 ये किसके साथ फिट बैठेगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला तो एक है कि प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, तो ये तो नहीं आएगा 1 2 3 6 के लिए, क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है और 6 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, राइट। अब यहाँ पे और